So dear students, today we are going to perform this practical testing of following faults of electrical installation by Megger. So we have to perform three tests. One is open circuit fault and the second one is for short circuit fault and the third one is for earth leakage fault. So earth leakage test. So basically these are the three important faults that may occur in any electrical circuit, that is open circuit, short circuit or earth leakage. So with the help of this practical we will try to understand and know how do we identify the faults. Okay, हम identify कैसे करते हैं. What is open circuit fault? You see, for any load operation it is required that both phase and neutral must be connected to the load, and the neutral is connected directly to the load and the phase terminal is connected through fuse and through a switch to the load. Okay, now in between these through this total length, if the phase wire and the neutral wire is electrically connected anywhere in the entire length of the line, then there will be a short circuit fault that must not be there for proper operation. Okay, zero voltage हो जाएगा उस जगह पर, then heavy short circuit fault or short circuit fault current will flow through the line and the line may burn out, the wire may burn. And what is open circuit fault? Open circuit means the circuit is break or the wire, the conducting wire is break in between in this length. Okay, in this entire length, if on a single place, if the circuit wire is breaked anywhere, then the load will not be operated as no current will flow through the load. So it is known as open circuit fault. And what is earth leakage test? Earth leakage means it is not actually short circuit, but the phase terminal is somewhere connected through somewhere connected to the ground. The phase terminal is connected to a wet wall, so it will show certain resistance and a leakage current will flow. Obviously current will flow through the load as well as current will flow directly to the ground, so there will be a loss of power as well, and it is also a dangerous thing that there is a earth leakage. So based on this few important points, we will try to know how do we identify these faults. For the purpose of identification, we have this our यू सी इंस्टॉलेशन बोर्ड. इस बोर्ड के ऊपर हमने बेसिकली ऊपर आप देखेंगे तीन हमने बल्ब के लिए बल्ब होल्डर्स लगा रखे हैं, और इन बल्ब होल्डर्स को हम ये तीन नीचे स्विच नज़र आ रहे हैं उसमें कनेक्ट करेंगे. लेफ़्ट हैंड वाले जो तीन स्विचेज़ हैं, राइट हैंड वाले जो दो स्विचेज़ हैं उनको नीचे जो दो सॉकेट नज़र आ रहे हैं उनसे कनेक्ट करेंगे. और नीचे आप देखेंगे तीन अलग अलग टर्मिनल्स हैं. ये जो N नज़र आ रहा है दैट इज़ फॉर न्यूट्रल, एंड जो P नज़र आ रहा है दैट इज़ यूज फॉर फेज, एंड द थर्ड वन इज़ दिस अर्थ. अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ. देखिए, ये जो न्यूट्रल टर्मिनल है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है लोड पर. ये जो सॉकेट है ये भी एक तरह का लोड है, तो न्यूट्रल टर्मिनल यहाँ लेफ़्ट टर्मिनल में कनेक्टेड होगा और वही यहाँ पर भी कनेक्टेड होगा इस सॉकेट में. और यही न्यूट्रल यहाँ इस कंड्यूट पाइप के ज़रिए होकर जा रहा है. ये भी लोड है, ये भी लोड है और ये भी लोड है. इन तीनों लोड्स के दो टर्मिनल्स हैं जिनमें एक टर्मिनल पर जो नीचे से न्यूट्रल आ रहा है वो कनेक्टेड होगा. ओके, अब हम करेंगे कैसे इस प्रैक्टिकल को वो समझ लीजिए. सबसे पहले हमें ओपन सर्किट टेस्ट करना है. तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो एक लोड को हम सबसे पहले हम एक लाइन को चेक करेंगे. तो ये हम एक लोड कनेक्ट कर दे रहे हैं. याद रखिए, ओपन सर्किट टेस्ट जब भी हम करेंगे तो लोड कनेक्ट कर देंगे और स्विच भी ऑन कर देंगे, और फेज और न्यूट्रल को इस मैगर के ज़रिए, मैगर इज़ ए टेस्टिंग एलिमेंट, ये एक हैंड ड्रिवन जनरेटर है
जो कि बेसिकली वोल्टेज जनरेट करता है। ये वोल्टेज थोड़े से वोल्टेज ये हम सर्किट के अंदर फ्लो या कनेक्ट करा के देखते हैं। मैगर बेसिकली यहाँ पर डायल पर क्या रीडिंग देता है, डायल पर ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये जो दो टर्मिनल्स है फेज और न्यूट्रल, इनके बीच का रेजिस्टेंस देता है। सो नाउ द लोड इज कनेक्टेड, इफ द स्विच इज ऑन देन मेगर मस्ट रीड 0 ohm if the circuit is okay. If the measure reads 0 ohm then the circuit is okay. If the measure reads infinite ohms or certain value of ohms then it is said to be a fault, there will be a fault. Okay, now measure को देखिए जब हम ड्राइव करते हैं, जब रन कराते हैं तो इनफाइनाइट दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है। सो क्योंकि स्विच ऑन है, स्विच ऑन के बावजूद ये स्विच ऑन है और हमने ये लोड कनेक्ट कर रखा है, तो इस टाइम मेकर जो रेजिस्टेंस बता रहा है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक फॉल्ट है। ओके, यहाँ पर फॉल्ट है तो पहले लोड के अंदर फॉल्ट है, अगर फॉल्ट नहीं होता तो ज़ीरो बताता। अब देखिए हमने इस लोड को रिप्लेस कर दिया, लोड को अब हम सेकंड वाले टर्मिनल पर लगा रहे हैं। उसका जो एसोसिएटेड स्विच है वो ये सेकंड वाला है, इसको हमने ऑन कर दिया। अब अगर मेगर को हम चलाते हैं तो ये देखिए 0 ohm बता रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ नो फॉल्ट। तो दिस सेकंड पॉइंट इज हैविंग नो ओपन सर्किट फॉल्ट। अब हमने थर्ड पॉइंट में ये लोड लगा दिया, तो ये तीसरा पॉइंट, उसका जो एसोसिएटेड स्विच था हमने उसको ऑन कर दिया। आफ्टर दैट व्हेन वी ड्राइव दिस मेगर, तो यहाँ पर भी ये 0 ohm बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले वाले पॉइंट में तो आपके फॉल्ट है, ओपन सर्किट फॉल्ट है, दूसरे पॉइंट में ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है, तीसरे पॉइंट में भी ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट आई विल गिव यू थ्रू द राइट अप। बात समझ में आती है? अब देखिए ये जो सॉकेट हैं इनको भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई लोड लगा दें थ्रू ये सपोज करिए ये हमने एक बल्ब और आपके होल्डर और वायर्स का लगा रखा है, तो ये दो टर्मिनल हम उस सॉकेट के अंदर लगा के वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसे अभी हमने चेक किया था। ओके, नाउ वी विल परफॉर्म शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की खास बात यह है कि जो लोड है हम वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लोड को हम लगाएंगे नहीं, है ना। लोड के फेज और न्यूट्रल टर्मिनल दोनों हटा देंगे। दूसरी खास बात यह है कि जिसको हमें टेस्ट करना है उसके स्विच को ऑन रखेंगे मीन्स अगर ये कनेक्शन सही है तो यहाँ से जो दोनों वायर आ रहे हैं फेज और न्यूट्रल वो यहाँ तक आ रहे हैं, तो इट इज़ एज्यूम्ड कि वो यहीं पर ओपन हुए हैं। तो ओपन सर्किट बताना चाहिए इसको, ओपन सर्किट बताना चाहिए मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बताना चाहिए अगर सब कुछ ओके है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कर रहे हैं, अगर मेगर ने यहाँ पर 0 ohm बताया दैट मीन्स कि कोई फॉल्ट है। ओके, तो अब हम ड्राइव करके देखेंगे। देखिए पहले लोड के लिए ये इनफाइनाइट बता रहा है, तो ओपन ही बता रहा है, तो हम ये कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट नहीं है। ओपन है या नहीं इससे नहीं पता लगेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट पक्का नहीं है। अब हमने सेकंड स्विच को ऑन कर दिया, यानी हम इस वाले लोड की बात कर रहे हैं, लोड कनेक्ट ही नहीं है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये क्या बता रहा है, इनफाइनाइट बता रहा है, दैट इज ओपन सर्किट बता रहा है, तो यहाँ भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तीसरे स्विच को ऑन कर दिया, यानी हम तीसरे लोड की बात कर रहे हैं। तीसरे लोड में देखते हैं चलाने के बाद, ये देखिए तीसरे लोड में क्या बता रहा है, 0 ohm बता रहा है। That means the phase terminal from here to this load, somewhere phase terminal और neutral terminal के बीच में कोई connection है, so there is a short circuit in this point. Okay, जब हम short circuit test कर रहे हैं तो लोड नहीं लगाएंगे, उसमें हमें ओपन सर्किट फॉल्ट है या नहीं ये तो पता नहीं लगेगा, लेकिन हमें शॉर्ट पता लग जाएगा। नाउ द फोर्थ टर्मिनल इज ऑल्सो कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर लोड कनेक्टेड नहीं है तो हम डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हैं। इसको देखिए चलाया तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इन्फिनिटी बता रहा है, दैट मीन्स कोई यहाँ पर फॉल्ट नहीं है। अब हमने नया अगला वाले लोड कट ऑन कर दिया, अब हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए इन्फिनिटी बता रहा है, ओपन सर्किट बता रहा है, दैट मीन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं है। ओके, तो ये बातें हो गई। नाउ यू सी, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस अर्थ लीकेज फॉल्ट, है ना। अर्थ लीकेज के लिए हम क्या करते हैं कि मेकर को फेज और अर्थ टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अर्थ टर्मिनल आमतौर से आप लोगों ने घरों के अंदर देखा नहीं होगा, बट इट इज़ एज्यूम्ड कि अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर है तो उसके अंदर अर्थ टर्मिनल होना चाहिए या प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइडेड होनी चाहिए।
तो मेगर के जो दोनों टर्मिनल्स थे वो हमने एक फेज और एक अर्थ में कनेक्ट कर दिए। अब फेज और अर्थ में कनेक्ट करने के बाद हम एक एक लोड का पॉइंट ऑन करते जाएंगे और मेगर में रीडिंग देखते चले जाएंगे। ओके, तो हमने पहला ऑन किया, दैट मीन्स हमने इस लोड की बात कर रहे हैं, पहले लोड की बात कर रहे हैं। अब अगर हम मेगर को चलाते हैं, ध्यान से देखिए, मेगर को हम चलाते हैं तो ये इन्फिनिटी बता रहा है। इन्फिनिटी बता रहा है मीन्स ओपन सर्किट बता रहा है, क्योंकि लोड लगा हुआ नहीं है तो ये जाहिर सी बात है ओपन सर्किट ही होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे स्विच को ऑन कर देंगे। दूसरे स्विच को हमने ऑन कर दिया, दैट मीन्स दूसरे लोड की बात कर रहे हैं, तो अभी भी इन्फिनिटी बता रहा है, दैट मीन्स ये भी ओपन सर्किट बता रहा है, तो ओपन लोड है नहीं तो ओपन भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई अर्थ लीकेज नहीं है। अब हम तीसरे स्विच को ऑन कर दिया, तीसरे स्विच को ऑन करने के बाद भी ओपन सर्किट बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी अर्थ लीकेज नहीं है। ओके, अब हमने इस सॉकेट के लिए, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट के लिए ये स्विच ऑन कर दिया। अब हम इसको चलाएंगे मेगर को, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है अर्थ से, फेज और अर्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है कहीं पर, तो डायरेक्ट फेज को हमने टच कर रखा है अर्थ से। अब देखिए, अब हमने आखिरी वाला किया, आखिरी वाले में जब हम चलाएंगे तो देखिए ये आपको ऑब्जर्वेशन लेना है कि ये कितना ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। सो इट इज़ अराउंड 4.5, ओके, 4.5 मेगा ओम्स है इस वाले सॉकेट के अंदर। तो 4.5 मेगा ओम्स रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी अर्थ लीकेज यहाँ पर है। सो हमने इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता नहीं है, ये तो दीवारों का या फर्श का रेजिस्टेंस होता है या किसी और स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस होता है जो कि बेसिकली फेस से कनेक्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रैक्टिकल। Now you see, these are the observations for the practical which I have which I told you just now. This is open circuit test, so these are the 5 loads, 5 switches के लिए। तो यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर ज़ीरो, ये मेगर की रीडिंग थी। तो यहाँ पर हमने रिमार्क जो लिखा, ओपन सर्किट, सर्किट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट। ओके, तो ओपन सर्किट हमने आइडेंटिफाई किया पहले वाले में, फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया तो ये 5 लोड के लिए किया। आफ्टर दैट यहाँ पर इन्फिनिटी आया, यहाँ पर इन्फिनिटी, तीसरे वाले पॉइंट में आप ज़ीरो आया था, तो बेसिकली यहाँ पर सर्किट कंप्लीट था। तो यहाँ पर नो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और नीचे भी नो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यहाँ सर्किट कंप्लीट था। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ। आफ्टर दैट द 5 पॉइंट्स आर टेस्टेड फॉर अर्थ लीकेज फॉल्ट, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। हेयर इज अ मेगर रीडिंग, दैट इज इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। चौथे में ज़ीरो आया था, डायरेक्ट कनेक्शन था। एंड पाँचवें में हमारा 4.5 मेगा ओम आया था, तो आप 4.5 मेगा ओम ही लिखिए, और यहाँ पर अर्थ लीकेज फॉल्ट आइडेंटिफाई हुआ। सो दिस इज अबाउट द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको यही वाली यूज़ करनी है, ओके, जो यहाँ पर वीडियो में आपको दिख रही है। आफ्टर दैट दिस इज द शीट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स। यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया है आपको, इसको पढ़ लीजिए। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, अर्थ लीकेज टेस्ट क्या होता है, एट द सेम टाइम ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ लीकेज फॉल्ट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। जहाँ आपको ठीक से साफ नज़र आ रहा है उसको आप बेसिकली क्रॉप, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द सेकंड पेज, दिस इज द सर्किट डायग्राम वेयर मेगर इज कनेक्टेड, okay, and a resistance which is connected internally to the megar to limit the short circuit current or the heavy current, and this is the dial indicator, okay, and these are the two terminals which are coming out from the megar, and it is connected to the to those terminal to which we are going to test. Okay, it is blank observation table. After that, these are the reports question. And the first question is discuss the purpose of earthing, what are the different method of earthing, write down the constructional details of megar. So prepare this report and submit through Google Classroom. Okay, thank you very much.